very warm good evening and welcome in the lines of the greatest scientist and the missile man of India. All birds find shelter during a rain, but eagle overcomes rain by flying above the clouds. So, problems are common, but attitude makes the difference. So बच्चों हमें ईगल बनना है. We have to accept the challenge. हमें problems को accept करना है and we have to find the ways to tackle it, to face it. Problems देख के भागना नहीं है because we are fighters. So with these lines, I welcome you back to the care classes. Namaskar. And today we are going to deal with a very important announcement by CBSE, that is regarding the syllabus reduction. 30% syllabus has been reduced. So we will see in details of what all things that we have not to see for the session of 2021. Okay, so let's be excited and get erect. The session for this will flow as we will deal with the deleted portions of class 10 CBSE, that is 30% reduction for the session 2021. So as you all are very aware of the present scenario that we are undergoing COVID crisis or the lockdown crisis. So here is a circular, this is a circular actually, this is a circular for the academic curriculum for the session 2021 by the director CBSE. So all the heads of the institutions affiliated to CBSE, which has been described here, subject is revised academic curriculum for the session 2021, the prevailing health emergency in the country and at different parts of the world, as well as the effort to contain the spread of COVID-19 pandemic has resulted in loss of classroom teaching, okay, due to the closure of schools. And therefore the board has decided to revise the syllabi for class 9 to 12 for the academic session 2021. The changes made in the syllabi have been finalized by the respective course committees with approval of curriculum committee and governing body. The revision of syllabi is a measure taken to deal with the extraordinary situation prevailing in the country at different parts. Considering the importance of achieving the level of learning, the syllabus has been rationalized to the extent possible, retaining the core concepts. The head of the schools and teachers may ensure that the topics that have been reduced are also explained to the students so that they will be able to connect different topics which are related. However, the reduced syllabus will not be a part of the topics for internal assessment and year-end board examination. Alternative academic calendar and inputs from the NCERT for transacting the curriculum using different strategies may also be a part of teaching pedagogy. Okay, so for elementary classes, the school may actually go through the guidelines of NCERT. So this was the circular which has been actually given on the 7th of July very recently. So बच्चों सबसे जो इसमें important part था that you have to know is that the syllabus, the reduced syllabus will not be a part of the topics for the internal assessment and year-end board examination. Okay. सो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या बताया गया, सीबीएसई इज वेरी मच वेल अवेयर कि ये जो अनयूजुअल सा सिचुएशन आया रिगार्डिंग द कोविड-19 क्राइसिस, तो इसके लिए हमारा स्कूल्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था. इवन दो सम मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स आर ट्राइंग टू गिव अप द लर्निंग थ्रू देयर ऑनलाइन सिस्टम, बट वो जिस तरह से होना चाहिए था या जिस मतलब द इम्पैक्ट विच इट शुड हैव डन, वो उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दिस. एंड इवन सो इट्स अ वेरी हम्बल एक्शन फ्रॉम द सीबीएसई दैट कि बच्चों पे स्ट्रेस नहीं आए बिनको बिकॉज उनका समय बहुत जल्दी जल्दी पार हो रहा है. दे आर हार्डली लेफ्ट विथ 6 और 7 months. तो इस समय अगर वो उतने सारे वास्ट पोर्शंस को दे दिया जाए
तो दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट. सो सीबीएसई हैज़ रिड्यूस्ड योर बर्डन. सो बच्चों आपको बहुत केयरफुली समझना है कि क्या क्या चीज़ को रियली में हटाया गया है और क्या चीज़ आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है, तब जाके वी कैन score the maximum in this less time. So let's start. So we will be dealing in terms of the subjects actually. The first is the mathematics. So we will be going with the dated portions of the mathematics for class 10. So I have divided this in units, unit 1 to unit 4. So this particular thing has been taken from the CBSE official website. So there is no actually problem of that you should be whether going with this or not. You can itself check. I have given that site over in that notification. You can open the CBSE official website. You can also download this deleted topic. Okay, so what we are seeing in the left hand side is this chapter, and in the right hand side they have given the topics removed. So in unit 1, that is number system, so बच्चों what they have done, real numbers में इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हट चुका है, मतलब इट हैज़ बीन रिमूव्ड. सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड मोस्ट बोरिंग विच द स्टूडेंट ऑफन यूज टू कंप्लेन. तो ये चीज़ बच्चों आप लोग को नहीं पढ़ना है. ओके, अलजेब्रा में बच्चों आप लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स जो डिवीजन पे बेस्ड है वो हट चुका है. मतलब आपको सिंपल मोनोमियल या बाइनोमियल वाला डिविजन्स नहीं आएगा. आपको जो डिविजन्स आएगा वो आपका पावर 3 या पावर 4 पे बेस्ड होगा, ट्राइनोमियल्स. ओके, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बच्चों अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 मेथड्स थे. एलिमिनेशन थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एंड द लास्ट वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं पढ़ना है. क्लियर, इट हैज़ बीन रिमूव्ड. इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव रिमूव्ड सिचुएशनल प्रॉब्लम्स reducible to quadratic equations. मतलब some sort of they used to give from the real life that such thing is happening, train is moving, and some sort of word problems which was situational based. तो बच्चों उसको remove किया गया है quadratic equation से. Even I will be giving you a detailed actually basically a part of quadratic equation which will be coming or which is going to come. Okay, when I will be uploading the video for the quadratic equation along with the exercises. तो बच्चों उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स किसको बोलते हैं. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में बच्चों आपको देखा जाए तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड नहीं आएगा. सम ऑफ टर्म्स जैसे बच्चों पहले क्वेश्चन आता था ना, एक टाउन में इतना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इस रेशियो से बढ़ रहा है या इस कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहा है, तो इतना साल के बाद कितना हो जाएगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है. तो इसमें आप लोग डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस. तो यूनिट 3 बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, दे हैव रिमूव्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला. मतलब आपको अब एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पूछने वाला है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, ज्योमेट्री में बच्चों हमारे ट्राइंगल्स में कुछ कुछ प्रूफ्स को डिलीट किया गया है. सम थ्योरम्स प्रूफ्स have been डिलीटेड. तो जो प्रूफ्स सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है इनका, यानी प्रूफ्स अब नहीं आएगा एग्जाम में. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो बच्चों इसका प्रूफ ऐसा जब नहीं पूछा जाएगा. तो बच्चों आपको सिंपल दिमाग में रखना है कि हमको इसको प्रूफ नहीं करना है. प्रूफ मतलब प्रूफ हमको इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करना है प्रूफ का, बट हमको ये रिजल्ट्स को अप्लाई करना क्वेश्चंस में सीखना है, बिकॉज उस रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे. तो प्रूफ नहीं आने वाला है. चलिए, आपके थोड़ा स्ट्रेस कम हो रहा है बच्चों. दूसरा क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल में इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट ऑफ फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल. मतलब बच्चों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी आपका नहीं आएगा ऐसा प्रूफ. बट बच्चों अगेन मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिर्फ प्रूफ स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा. सर्कल्स में बच्चों कुछ डिलीशन नहीं है. सर्कल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है. आई विल बी सून अपलोडिंग द चैप्टर ऑफ दिस. कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज है दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल नहीं आएगा. सो बच्चों ये सब जो टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था, तो एटलीस्ट दे हैव ट्राइड टू सेव योर टाइम सो दैट आप सही जगह पे अपना टाइम लगा सकते हो. चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे. अब बच्चों हम लोग आते हैं यूनिट 5 टू यूनिट 7 में. तो यूनिट 5 में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री है. तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल रेशियोज मतलब 0 डिग्री 90 डिग्री एंड ऑल द 0 30 40 45 60 90, तो ये सब जो सिंपल वैल्यूज वाले क्वेश्चन आते थे ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब नहीं आने वाले हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस. बट
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बेस्ड प्रूविंग वो आएगा, वो हमेशा ही आता आया है। तो बच्चों ये अच्छा कर रहा है कि आपको अपना एफर्ट कहाँ लगाना है। जो आइडेंटिटीज मतलब बच्चों मैं मीन कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सब बच्चों आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह आने वाला है। क्लियर? सो बच्चों तो जो नियरली 30% आपका रिडक्शन हुआ है, कीपिंग द कोर कंटेंट इंटैक्ट। ओके, सो बच्चों और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे मेंसुरेशंस में एरियाज रेटेड सर्कल में आपका सेंट्रल एंगल वाला क्वेश्चन जो 120 डिग्री है वो नहीं पूछा जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन हट चुका है, नॉट टू डील विद द फ्रस्ट्रम एनी मोर, अगेन अ टाइम सेविंग गुड मूव बाय सीबीएसई। स्टैटिस्टिक्स में बच्चों आपका स्टेप डिविएशन हटा दिया है फॉर फाइंडिंग मीन, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हैज आल्सो बीन रिमूव्ड। सो इट्स अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि बच्चों ये सारा चीज़ आपका रिमूव कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में बच्चों कोई डिलीशन नहीं। चलिए ये आपके लिए एक स्कोरिंग टॉपिक है, सो यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन दिस। ओके, सो बच्चों आपका मैथ्स का तो हो गया। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग फॉर डिलेटेड पोर्शंस ऑफ द साइंस फॉर क्लास 10th। तो जो इन केस ऑफ डिलेटेड पोर्शन फॉर साइंस, तो जो इसमें डिलेटेड थ्योरी पोर्शंस आपका दिया हुआ है। केमिकल, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। तो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बच्चों बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को रिमूव किया गया है। करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, तो बच्चों ये आपको नहीं पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप देखोगे बच्चों तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, तो बच्चों ये सब रिमूव किया गया है। मतलब जो नोमेनक्लेचर भी आपको मैक्सिमम हटा ही दिया गया है। एंड डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हटाया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, तो बच्चों ये भी आपका नहीं आने वाला है। ओके, एंड इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड में ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ना है आपको। प्रिपरेशंस, आई थिंक यू विल बी गेटिंग रिलैक्सेशन इन प्रिपरेशन। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी दे हैव रिमूव्ड। ओके, so it's a good news for you, they have removed a lot of portions from chemistry. So बच्चों अब हम लोग देखते हैं बायो में क्या किया है। तो यूनिट 2 जो बायो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में बच्चों आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट विच इंक्लूड्स जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, इसको रिमूव किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स भी हटाया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स भी हटाया गया है। क्लियर? नर्वस system, voluntary, involuntary, reflex action, chemical coordination, animals and hormones. So these all things have been removed. Okay. So in case of this heredity and evolution, basic concepts of evolution has been removed. So बच्चों बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ना है जो इसके अलावा आपके पास पोर्शंस में है, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है। चलिए अब देखते हैं यूनिट 2 नेचुरल फेनोमेना में ह्यूमन आई का फंक्शनिंग ऑफ लेंस एंड डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन एंड स्फेरिकल मिरर, तो बच्चों ये भी आपका रिमूव किया गया है। इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी ओवर डीसी एडवांटेजेस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो इनसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। सो इट्स अ वेरी नाइस मूव फ्रॉम सीबीएसई। अगेन दे हैव ट्राइड टू हेल्प यू लेसन योर बर्डन। सो बच्चों अब हम लोग अगेन दूसरा देखते हैं। इसमें यूनिट 5 टू प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी चीज़ रिड्यूस हुआ है। तो बच्चों इसमें अगर आप देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, फोसिल, सोलर, बायोगैस, विंड, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो बच्चों ये सब भी चीज़ आपके पास अब नहीं रहने वाला है। सो अगेन एक्चुअली ये बच्चों ये जो टॉपिक था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक है। ये बहुत अच्छा किया है कि इनको अगर दे हैव सेव्ड योर टाइम इन दिस। और जो प्रैक्टिकल्स में आपका ये जो सारा प्रैक्टिकल्स है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, बिकॉज इट इज़ बीइंग कनेक्टेड बाय द स्कूल्स, तो आपको ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड इंटरनल असेसमेंट्स में भी बच्चों यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, सो अगेन दिस ऑल थिंग्स विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू, मतलब विल नॉट बी एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ योर बर्डन दिस टाइम। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है आपके लिए ये। जो सोशल साइंस में हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि चैप्टर एंड रिकमेंडेड डिलीशन पोर्शन, मतलब बच्चों ये रिकमेंड किया गया है। तो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दैट इज़ योर हिस्ट्री पोर्शन,
तो बच्चों इसमें से नोट एनी वन आउट ऑफ द दीज टू चैप्टर्स, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से कोई एक शायद आपके पास नहीं रहे, कोई एक ही रहेगा। और बच्चों वो जो चैप्टर डिलीट होगा वो आपके पास नहीं आएगा आपका पीरियोडिक टेस्ट में और बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ये आपको ग्रेजुअली आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। क्लियर। और दूसरी चीज़ क्या है, सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। ओके, तो जो ये चीज़ भी आपका कंप्लीट चैप्टर को ये किया गया है, रिमूव किया गया है। एंड दिस कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो व्हाट यू आर सीइंग दैट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर आपका हटाया गया है। वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ बच्चों आपका मैप आएगा, बिकॉज मैप आपका एग्जामिनेशंस में आता है, तो सिर्फ वो पोर्शन अवेलेबल रहेगा। एंड वाटर रिसोर्सेज का जो आपका थ्योरी पार्ट है दैट विल नॉट बी देयर। मिनरल रिसोर्सेज में बच्चों कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट मैप, तो जो मैप वर्क अवेलेबल रहेगा बट द थ्योरी पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज and mineral resources will not be available. So again this is a very good move for you. Good. So it's a time saving for you all. The political science which is again a part of SST, इसमें आपका democracy and diversity complete chapter में they have removed gender, religion, caste, again they have removed and political struggles and challenges to democracy. So these particular portions are being removed as for time being. So बच्चों आपका जो इसमें ये है SST का भी आपका स्ट्रेस काफ़ी रिमूव हुआ है, 30% आपका स्ट्रेस आपको रिलीव किया गया है। चलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू यूज़ दैट टाइम इन स्ट्रेंथनिंग बाकी अदर सब्जेक्ट्स। सो जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में देखा जाए तो स्क्रैच और पाइथन में आपका स्क्रैच, रिवीजन ऑफ बेसिक स्क्रैच, स्प्राइट, टेम्पो, वेरिएबल्स, इवेंट्स, कोऑर्डिनेट एंड कंडीशनल, ड्राइंग एंड इटरेशन, ओके, क्रिएटिव गेम्स, एंटिटी स्टोरीज, पाइथन में रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक्स, एल्स स्टेटमेंट्स, तो ये सब रिलेटेड जितना भी आपका है तो ये सब चीज़ को भी हटाया गया है। ओके, लूप। सो आई विल बी गिविंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑल्सो ऑन द कंप्यूटर टॉपिक्स एक्चुअली, कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट वी हैव टू स्टडी एंड what are chapters. I will give the complete chapters only so that it will be very easy for you to understand the programmings. So deleted portions in English, ग्रामर प्लस लिटरेचर। सो बच्चों इसमें इंग्लिश में आपके पास यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस अब हट चुका है ग्रामर्स में, दिस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर क्लास 10th। नाउन है, एडवर्ब, क्लाउजेस, कंडीशंस, टाइम रिलेटिव प्रपोजिशंस, तो दिस ऑल थिंग्स हैव बीन डिलीटेड। अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसबिल एंड द ऑटर फॉर एनी गागरी, Footprints Without Fit, The Midnight Visitor, Question of Trust, The Book That Saved the Earth. So these chapters have been deleted. So बच्चों इसको छोड़ के आपको बाकी portions में ध्यान देना है। So again here also you have been relieved, stress free. चलो good move for you, congratulations. तो इन हिंदी कोर्स है, जिनका कोर्स है तो बच्चों उसमें ये सब चीज़ है आपका। काव्य खंड में देव, जयशंकर प्रसाद, आत्मकथा, नागार्जुन, मंगल, भानु भंडारी। ओके, so these particular things have been reduced in the course A. Okay, and in course B this particular things, that is अलंकार, then पादे खंड में बिहारी, दोहे, महादेवी वर्मा, and गादे खंड में, so these all things actually have been reduced. Okay, so बच्चों आपके लिए एक बहुत अच्छा मूव हुआ है seeing the lockdown crisis, because इसमें आप पूरा efficiently आपको टाइम नहीं मिल पाया, बट द CBSE हैव अंडरस्टूड इट और आपको काफ़ी टाइम दिया गया है सिलेबस को रिमूव करके। तो बच्चों अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत ही प्रीसियस वे में अपने टाइम को यूज़ करना है। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से बच्चों एक प्लान करना होगा, एक ट्रैकिंग शीट आपको बनाना पड़ेगा डेली, कि जिसको हम लोग डेली ट्रैकर भी बोलते हैं, कि आप डेली पढ़ क्या रहे हैं, क्या क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाइए, हर दिन का टारगेट सेट कीजिए। ओके, आई विल बी गिविंग अ डिटेल वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। तो चल इस तरह से क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आप क्या क्या चीज़ पढ़े, आप उसको ठीक से एनालाइज कर पाएंगे। ओके, और फाइनली मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। ओके, एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या बच्चों हम लोग का वी हैव गॉन थ्रू द डिलीटेड पोर्शंस ऑफ द 10th सिलेबस। ओके, तो हमने बच्चों क्लियरली देखा कि क्या क्या आपका पोर्शन डिलीट किया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ओके, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था डिलीशन। उसके बाद बच्चों हमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में जो एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है हमारा
एज अ टीचिंग टीम जो हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में आपको बच्चों अब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया है। पहले सिलेबस थोड़ा सा बल्कि था स्टूडेंट्स के लिए एंड टाइम भी था, बट सिंस अभी टाइम नहीं है तो उस हिसाब से आपके पास एनफ बच्चों आपके पास चांसेस है कि आप आराम से टॉपिक बाय टॉपिक जो आपको दिया है, मैं प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर्स की जो भी चीज़ उससे रिलेटेड है आई विल बी गिविंग अप द अपडेट्स, तो उसी हिसाब से बच्चों आपको प्लान करना है। द नेक्स्ट थिंग इज अभी बच्चों अब दूसरी चीज़ है कि अपना वे ऑफ लर्निंग को चेंज करना है। वी हैव नाउ टू हैव अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी। मतलब बच्चों हर एक चीज़ को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम डिलेट, मतलब वी विल हैव टू गिव। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए इतना क्वेश्चंस, इतना सम सबको करना है, साइंस में फिजिक्स में इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक लेना है, बायो में ये टॉपिक करना है, तो हर दिन का एक प्रॉपर रूटीन वाइज करना होगा, हमें सिस्टमैटिक करना होगा, तब जाके। बिकॉज अभी ऐसा क्या हो रहा है, बहुत बार मैं स्टूडेंट्स लोग से ये कॉन्टैक्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे ये फीडबैक मिल रहा है कि सर फील ही नहीं आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, या कुछ एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा है कि हम रियली में कुछ पढ़ पाए हैं। तो बच्चों उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, एक नेगेटिव आपके अंदर जो आ जा रहा है, तो उसको ये करने के लिए आपको एक शेड्यूल फॉलो करना होगा। क्योंकि कभी भी जब स्कूल, जब हम लोग का स्कूल जब चल रहा था, तो स्कूल चलते समय सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि वी वेर हैविंग अ शेड्यूल, वी वेर हैविंग अ टाइम टेबल फॉर अ थिंग्स। तो बच्चों अभी आपको सेल्फ मोटिवेट होके वो सारा टाइम टेबल खुद से ही बनाना पड़ेगा। ओके, टाइम टेबल खुद अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक सैंपल दे दूं जिसको मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करवाता था, या अभी मैं जो ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं फॉलो करने के लिए, ताकि वो आपके लिए एक तरह का गाइड रहे। क्लियर? उसके बाद बच्चों मोटिवेशन, तो बहुत अभी ऐसा हो गया है कि आप हमेशा एक सिनेरियो में बंद है, घर पे है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनक्लोज्ड, तो बच्चों बहुत बार चीज़ें बहुत मॉडर्नस हो जाती हैं। तो इन सब समय आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों कभी भी हमेशा जब भी ऐसा लगे तो आप कभी भी कोई ग्रेट पर्सन्स का कोटेशन सुन लीजिए, किन्हीं का स्पीच सुन लीजिए, बच्चों आपको बहुत मोटिवेशन आएगा। या कभी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, पेरेंट्स से बोलिए कि वो तो आपको मोटिवेट करे। और पेरेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट करना है बच्चों को, ताकि उनका बोर्ड्स बहुत अच्छा रहे, क्योंकि ये बोर्ड्स उनका फाउंडेशन है और पेरेंट्स आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स सब चाहते हैं कि आपका बेस्ट हो। क्लियर? सो बच्चों सिस्टमैटिक वे में मोटिवेशन के साथ प्रिपेयर करेंगे हम लोग सब चीज़, एंड द केयर क्लासेस विल बी देयर टू हेल्प यू ऑलवेज, जिस तरह से कर पाए। ओके, सो बच्चों अभी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं लास्ट नॉट द लिस्ट, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। तो बच्चों बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ आपको करना है उस चीज़ को दोहराना, उस चीज़ को फील करना है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि दैट यू ऑल हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू विन। सो सबको एक बार फिर से बोलेंगे दैट वी विल विन, आई विल win, I will win. So that's it. So let's do it differently with the care classes. Thank you. I am signing out. Happy studies and take care.